Yes. Hello students. Um, we will see what we have learned in last lecture and we will just continue from there onwards. Here what we have learned in last lecture is that it was like this: sin x is equals to 0 if x is equals to n pi, n belongs to z, and cos x is equals to 0 if x is equals to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z. We learned both of these things from a unit circle, that is observation. It was from an observation of a unit circle. The meaning of this statement is that if the angle subtended by the point on the unit circle with center at origin is in the multiple of pi radians, then the sine value for that angle is always 0, that is sin x is equals to 0. Similarly, for cos, if the point on the unit circle with a center at the center at the origin subtend an angle of pi by 2 into a multiple of, that means odd multiple of pi by 2, then cos value for that angle is always 0. That in other words, we also call that this x are called the zeros of sine and 0. So x is equals to n pi, n belongs to z is called the zeros of a sine. Similarly, x is equals to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z radian are the zeros of cos. That means for this value of radian angle, respectively sine and cos will be 0. Another thing what we have learned in last lecture was that like this, that we learned that cos 2n pi plus x is equals to cos x, n belongs to z. Similarly, sine 2n pi plus x is equals to sin x, n belongs to z. That we also learned in the last lecture. The meaning of this thing is that the value of cos and sine repeats after an interval of 2 pi, that is a multiple of 2 pi. That means if the value of cos is cos x, the same value will come for cos 2 pi plus x, 4 pi plus x, or even cos minus 2 pi plus x minus 4 pi. It is a multiple of 2 pi. After 2 pi multiple, that is after an interval of 2 pi radian, the value of cos and sine repeats. That is the meaning of this thing. From these two things, we can also generalize this statement for remaining trigonometric functions also. That is, if we want to make tan 2n pi plus x, then we know that tan is nothing but it's a ratio of sine and cos. So if tan x is equals to sine x upon cos x, then tan 2n pi plus x will be sine 2n pi plus x upon cos 2n pi plus x. But we know that sine 2n pi plus x is equals to sine x, so we can write here sine x. Same way for cos, it's a cos x, so it's a tan x. So tan 2n pi plus x plus x, 2n pi plus x is equals to also tan x. Similarly for cot x, cot 2n pi plus x. Okay, now cot 2n pi plus x, that means cot is nothing but reciprocal of a tan, so we can write 1 upon tan 2n pi plus x. Likewise, cot x is equals to 1 upon tan x, so here cot 2n pi plus x is equals to 1 upon tan 2n pi plus x. And now we have shown that tan 2n pi plus x is equals to tan x, so 1 upon tan x, and 1 upon tan x is nothing but a cot x. So same result applies to cot also. Cot 2n pi plus x is equals to cot x. And again we move for sec and cosec x. Sec 2n pi plus x
is equals to sec is nothing but a reciprocal of cos. So like this, sec x is equals to 1 upon cos x. Here we can write sec 2n pi plus x is equals to 1 upon cos 2n pi plus x, and we know that cos 2n pi plus x is equals to cos x. So we can write 1 upon cos x is equals to sec x, same way cosec x, cosec 2n pi plus x, it is a reciprocal of sine, so we can add 1 upon sine 2n pi plus x, that is 1 upon sine x is equals to cosec x. So this thing is applicable to all the trigonometric function. For in general, all trigonometric functions repeats after an interval of 2 pi radian. 2 pi radian के बाद सभी trigonometric functions repeat होते हैं. ओके, सो इट इज इन जनरल टर्म. स्टिल tan और cot के लिए हम अलग से बताएंगे आफ्टर लुकिंग एट इट्स ग्राफ्स कि ये tan और cot का जो रिपीटेशन है वो 2 पाई के रेडियन पे नहीं, पाई के रेडियन पे होता है. बट दैट वी विल सी फर्दर. राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, all the trigonometric functions repeats after an interval of 2 pi radian. That means 2 pi radian के बाद सब trigonometric function की values सेम रहती है, चेंज होती नहीं है, वही चीज वापिस रिपीट होती है. ये हमने लिखा है जो 2n pi that is it is in terms of radian. सेम वे डिग्री में भी हम लिख सकते हैं. डिग्री में 2 pi radian that is डिग्री में वो होगा 360 डिग्री. तो अगर डिग्री का हमको यूज करना रहेगा, ये एंगल, if this angle is not in radian but it is given in degree, then we should use all term in terms of degree. यहाँ पे we know that 2 pi radian is equals to 360 degree. तो यहाँ पे क्या है, ये चीज 2 pi के मल्टीपल में होनी चाहिए. तो डिग्री का होगा तो वो 360 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए. दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज वी कैन राइट लाइक दिस, इन टर्म्स ऑफ degree measure, all we will write all the relations, that is here cos 360 n, 360 into n, 360 degree n plus x degree is equals to cos x degree n belongs to z. That means यहाँ पे n ये कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. इफ यू राइट दिस, यहाँ पे ये मैंने सिंबल लिखा है, दैट मींस इट इज इन डिग्री. यहाँ पे कोई सिंबल हम नहीं लिख रहे हैं तो इट इज इन रेडियन. ये कन्वेंशन हमको एक्सेप्ट करना है और ये पूरी बुक में फॉलो भी होगी. जहां पे एंगल अगर रिप्रेजेंट किया है और एंगल के साथ कोई सिंबल इस तरह का नहीं लिखा हुआ है तो उस एंगल को हम रेडियन एंगल ही लेंगे. और अगर इट इज इन अ डिग्री टर्म, डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे डिग्री का सिंबल मेंशन किया हुआ होगा. अदरवाइज कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम ये कन्वेंशन लेते हैं कि ये रेडियन में होना चाहिए. तो यहाँ पे ये चीज 2 पाई का मल्टीपल है, यहाँ पे 360 का मल्टीपल. सेम अप्लाइज टू एवरीथिंग इफ एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री. सेम वे बेटा, साइन 360 डिग्री एन प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू sin x degree tan 360 n plus x degree is equals to tan x degree cot 360 degree n plus x degree is equals to cot x degree sec 360 degree n plus x degree is equals to sec x degree. Similarly, cosec 360 degree n plus x degree is equals to cosec x degree. In all these cases, n belongs to z. N is an integer. Now here, when angle is in terms of degree, then this should be the multiple of 360 degree. If angle is mentioned in radian, then this should be the multiple of 2 pi. तभी same value आएगी. यहाँ पे 2 पाई रेडियन और यहाँ पे 360 सेम कन्वर्जन है और कुछ नहीं है. सिर्फ ये सेम फॉर्मूला में यहाँ पे लिखे, सिर्फ यहाँ पे डिग्री टर्म लिखा है और कुछ नहीं. ओके, सो जस्ट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. हमको इसके ऊपर से एग्जांपल्स आगे करने हैं. राइट नाउ रिमेंबर, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हम डिटेल में पढ़ रहे हैं थोड़ा. इट इज इसके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर एक बार आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको बाकी का कंपेरेटिव इजियर हो जाता है. एंड स्टिल आई एम टेकिंग अ टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस फंक्शंस बिकॉज 11th-12th में जो मैथ्स की स्टडीज वो काफी कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर इसके ऊपर आपका अच्छा कमांड आ जाता है तो आपका आगे का ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छा होगा ही, लेकिन मैथ्स का दूसरा पोर्शन है वो भी काफी आपका इजी हो जाएगा. एक्चुअली कैलकुलस में भी इसका बहुत सारा यूज है और कैलकुलस 12th में ऑलमोस्ट 50% है. ओके 100 में से 50 मार्क्स कैलकुलस के है, तो वो पूरा या वो कैलकुलस का फंडा अलग है, लेकिन उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही यूज होती है. दैट इज आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल मोर. मैं थोड़ा ज्यादा भी ले रहा हूं टाइम, बट ये मैं शांति से पीसफुली ये चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक बार ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आगे ट्रिग्नोमेट्री का हमको जो रियल टर्म्स में जो पढ़ना है, नई चीजें जो पढ़नी है, वो पूरी इसके ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं और हमको वो इजी बना देगी. That's why I'm just going like this. Okay, so be careful. एक एक चीज करके मैं लिख के जा रहा हूँ. लास्ट में मैं पूरा टेबल भी बनाऊंगा, सब चीज को एक साथ रखूंगा भी. बट राइट नाउ जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे ये है तो ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है. सिमिलरली कोस के जो साइन के रेडियन को और डिग्री के लिए ये जो चीजें, ये स्टेटमेंट्स हमको याद रखने हैं. इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन जनरल टर्म में डिफाइन किया था, जैसे कि tan x इज इक्वल्स टू sin x अपन cos x, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z. क्योंकि जब कभी भी tan x इज इक्वल्स इज अ रेशियो ऑफ sin एंड cos, तो cos की वैल्यू जिसके लिए जिस एंगल के लिए 0 होगी उसके लिए tan डिफाइन नहीं होगा, तो वहां पे वो tan वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो एक्सक्लूड करना रहता है. तो उस तरह से जनरल टर्म में हमने बाकी के चारों के भी जो डिफाइन करने थे वो हमने किए थे. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस थिंग्स और इनको इकट्ठा करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. इसके बाद और भी एक कंसेप्ट में पढ़ाता हूं, दैट इज द साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. वो पढ़ने के बाद वी विल परफॉर्म सम एग्जांपल्स कुछ करना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके ये स्टूडेंट्स, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हमको टॉपिक पढ़ना है, लेकिन साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे उसके पहले हम थोड़ा इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बात करें. यस वो चीजें हम दैट वी विल लर्न फ्रॉम अ यूनिट सर्कल ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, जो जनरलाइज टर्म में हमको पढ़नी है, इट इज बेस्ड ऑन अ यूनिट सर्कल. जो पूरा है ट्रिग्नोमेट्री वो हमने यूनिट सर्कल के ऊपर से डेवलप किया है हमने. ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं ड्रॉ करता हूं, ये दैट इज अ यूनिट सर्कल. ओके एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम साइन की ओर मूव करेंगे, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके यहाँ पे ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, y dash. If nothing is mentioned, then we consider positive direction of x axis as a reference always. बेटा ठीक है, यहाँ पे ये हमने चीजें पढ़ी है. ओके नाउ लेट यहाँ पे p उसके कोऑर्डिनेट है a b. ओके नाउ ये हमने a से यूनिट सर्कल, b 0 1, c -1 0, d 0 -1. ओके नाउ यहां पे एक मैं चीज क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं व्हाटएवर, लेट p be the point on the unit circle with the center at origin such that, यहाँ पे P को मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, such that angle POA is equals to x radian. ओके नाउ यहाँ पे है ना P के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं, लेट PAB be the point on the unit circle with the center at origin such that angle POA is equals to x radian. Now अगर ये x radian हो गया तो हमको पता है
जो p के कोऑर्डिनेट से x और y कोऑर्डिनेट वो कुछ नहीं p, दैट इज ये होगा cos x और sin x। दैट मीन्स यहाँ पे p का x कोऑर्डिनेट a है तो वो होगा, अगर p ने यहाँ पे सेंटर पे x रेडियन सस्टेन किया है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो p का x कोऑर्डिनेट दैट इज नथिंग बट जो एंगल सस्टेन किया है उसका cos वैल्यू, और y कोऑर्डिनेट जो एंगल सस्टेन किया है उसकी साइन वैल्यू, दैट इज साइन x। ये चीज है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, लेट, अब दूसरा मैं पॉइंट ले रहा हूं q, लेट q बी द पॉइंट on the unit circle such that angle QOA is equals to minus x radian। Now सेम, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट आई हैव रिटन हियर minus x radian, that means the angle will be in the clockwise direction with respect to positive x axis direction। so यहां पे ये पॉइंट आएगा Q, और ये जो एंगल है यहां से दैट इज माइनस एक्स। ओके, नाउ यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस एक्स है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट अगर P के कोऑर्डिनेट्स a b है तो Q के कोऑर्डिनेट्स, नाउ P वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A और B बहुत पॉजिटिव होंगे, Q फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव एंड Y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो और सेम एंगल यहां पे है, जितना X एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही X क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q सबटेंड करता है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे A एंड माइनस बी, बिकॉज नाउ वी नो दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और उसके अलावा ये a और b क्यों लिए हैं, तो क्योंकि सेम एंगल सबटेंड दोनों तरफ कर रहा है इसलिए। ओके, तो हमने ये लिया। ओके, सो इफ हम अगर q ऐसा पॉइंट लेते हैं कि एंगल QOA इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रेडियन, सो वी कैन राइट दैट देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of Q will be A minus B। Okay, that means we can write Q A minus B। Now अब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन है, साइन और कोस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, यहां पे क्या हमने किया था, P कितना एंगल सस्टेन करता है सेंटर पे, तो कि x, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो cos x, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो sin x। सिमिलरली यहां पे Q कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, माइनस एक्स, तो Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो Q जो एंगल सस्टेन करता है एट द सेंटर उसका cos वैल्यू, दैट मीन्स यहां पे होगा cos ऑफ माइनस एक्स, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y जो ये cos और sin की डेफिनेशन है जो हमने एस्टेब्लिश की है कि अगर यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को अगर मैं इसके सेंटर से कनेक्ट करता हूं तो वो जो एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ सबटेंड करता है, तो अगर लेट वो एंगल एक्स सबटेंड करता है, वो एंगल एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जो पॉइंट है, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कुछ नहीं, इट्स नथिंग बट जो एंगल उसने सबटेंड किया है सेंटर पे उसकी कॉस की वैल्यू जितनी, और उसका वाई कोऑर्डिनेट वो उसने जो एंगल सस्टेन किया उसकी साइन वैल्यू जितनी, इस तरह से है। ओके, तो लाइकवाइज यहां पे एंगल एक्स पी ने सेंटर पे एंगल सस्टेन किया है एक्स रेडियन, सो पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली क्यू ने यहां पे सेंटर पे जो एंगल सस्टेन किया है वो है
माइनस एक्स, तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ माइनस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ माइनस एक्स, ये चीज होगी। ओके, सो हियर यहां पे क्यू ए माइनस बी है, तो यहां पे क्यू कॉस ऑफ माइनस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स लिख सकेंगे। नाउ ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी है। इसके ऊपर से मैं लिख सकूंगा ये कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, बट ए इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा यहां पे है, ए इज इक्वल्स टू अगर पी पहले से लिया हुआ है उसके कोरस्पोंडेंट में मैंने क्यू लिया है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल रहा है कॉस एक्स, तो यहाँ पे ए की जगह पे मैं कॉस एक्स लिख सकता हूं, तो यहाँ पे ये कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे बी की जगह पे साइन एक्स, तो यहाँ पे लेकिन साइन ऑफ माइनस माइनस बी, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इसके ऊपर से हमें ये बनेगा कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। यस, दोनों में सेम रूल अप्लाई नहीं होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स इज साइन एक्स। इसका मतलब अगर मेरे को इसका यूज करना है तो ये जो साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे इस तरह से होगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 3, तो मेरे को वैल्यू लिखनी है जो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू है वही कॉस माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू होगी। सेम वे लेकिन साइन में अगर लिखूंगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3। यस, यहाँ पे माइनस साइन निकालने के बाद साइन पाई बाय 3 की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगा। तो ये जो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो कॉस को इवन फंक्शन कहते हैं और इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। यस, इवन और ऑड में दैट मींस यहाँ पे जिसपे साइन चेंज होती है तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो इवन फंक्शन कहा जाएगा, और साइन चेंज होगी अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू चेंज होगा तो वो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। ओके, सो दिस आर द थिंग्स इवन और ऑड का है, और इसका हम आगे बाकी सब में भी एक्सटेंशन करते हैं। ओके, बाकी सब में एक्सटेंशन करते हैं यानी 10 का। अगर मेरे को tan ऑफ माइनस एक्स लिखना है तो tan ऑफ माइनस एक्स, तो जो tan की डेफिनेशन है tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपन कॉस एक्स, तो यहाँ पे tan ऑफ माइनस एक्स क्या होगा साइन ऑफ माइनस एक्स अपन कॉस ऑफ माइनस एक्स, बट साइन ऑफ माइनस एक्स क्या है तो माइनस साइन एक्स है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो मेरे को कॉस एक्स ही लेना है, साइन अपन कॉस माइनस tan x। सेम वे कॉट ऑफ माइनस एक्स, ना कॉट ऑफ माइनस एक्स के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ tan, तो कॉट ऑफ माइनस एक्स, तो जैसे कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपन tan x लिखते हैं, तो कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपन tan ऑफ माइनस एक्स। ना 1 अपन tan ऑफ माइनस एक्स हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है माइनस tan x, सो 1 अपन tan x इज इक्वल टू कॉट एक्स हुआ, तो ये माइनस कॉट एक्स ये चीज हुई। ओके, नाउ लास्ट स्टेज जो दो रहे सेक ऑफ माइनस एक्स, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉस, जैसे सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपन कॉस एक्स, तो सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपन कॉस ऑफ माइनस एक्स, 1 अपन cos of minus x, but we know that cos of minus x is equals to cos x, तो यहाँ पे 1 अपन cos x is equals to sec x, और लास्ट में cosec x, ठीक है, cosec x, cosec of minus x. Now cosec is the reciprocal of a sine. Likewise, cosec x is equals to 1 upon sin x, so cosec of minus x is equals to 1 upon sine of minus x, and we know that sine of minus x is equals to minus sin x, तो यहाँ पे 1 upon minus sin x is equals to minus cosec x. Okay, so these are the things. ये आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। यहाँ पे दो ही साइन cos इसका रेसिप्रोकल sec, cos और sec वो इवन फंक्शन है, बाकी सब ऑड फंक्शन है।
cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x आ रहा है, sec ऑफ माइनस एक्स इज sec x, बाकी सब में माइनस साइन बार आ रही है. जस्ट यू विल हैव टू रिमेंबर लाइक दिस. दिस इज एक्चुअली इवन एंड ऑड फंक्शन. नाउ वी विल जस्ट मूव ऑन टू साइंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, वो हमको बाद में देखना. अब वो चीज हमको देखना है वो किस तरह से है. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ये सारी चीजें याद रख, एक के बाद एक में जो बोलते हुए जा रहा हूं. आई जस्ट टुडे आई बिगन विद सम characteristic of a trigonometric function. Whatever we have learned in the last lecture, वो हमने मेंशन की, उसके जनरलाइज फॉर्म बनाए, ये उसमें वापस ऐड हुआ. इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा. ये सारी चीजें हमको यूज करने को आएगी. ओके, ठीक है. अब हम साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं कैसे. ओके, ये स्टूडेंट, हम यहाँ पे साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस भी हम यूनिट सर्कल से ही एस्टैब्लिश करेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, दैट मींस यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम ओरिजिन लेते हैं. ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, मींस बाय इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वी आर हैविंग 4 क्वाड्रेंट. हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट थिंग. यहाँ पे ये चीज हमको, यही चीज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, दैट इज द साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कॉसेक, इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस, दैट मींस पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, वो चीज हमको सिर्फ मालूम करना है. और वो कैसे करना है वो विल सी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. और उसके बाद एक शॉर्टकट रूल भी हम बनाएंगे. ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट, उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको कहा जाएगा, तो लेट दिस इज अ 0 रेडियन. अगर इफ वी आर मूविंग इन जनरली वी जस्ट गो फॉर पॉजिटिव एंगल, दैट इज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये मेरा होगा π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन. एंड अगेन ये सेम पॉइंट पे वापस आऊंगा तो वो 2π रेडियन होगा. तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो एंगल सबटेंडेड, दैट मींस 0 और π/2 के बीच में, दैट मींस यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन π/2, ये होगा π/2 लेस देन x लेस देन π. यस, π/2 और π के बीच में. p जैसे मूव करता जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, जो एंगल सबटेंड करेगा वो, या तो जो बनाएगा वो, ये जो होगा π लेस देन x लेस देन 3π/2. एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π, इस तरह से. ओके, नाउ यहाँ पे वी ऑल्सो लर्न दैट द इंटीजर मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल. वो किसी क्वाड्रेंट में इंक्लूडेड नहीं है, दे सेपरेट्स अ क्वाड्रेंट. ये π/2 फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी नहीं, दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल. वो क्वाड्रेंट को सेपरेट करता है. π/2 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को सेपरेट करता है. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्वाड्रेंट. दैट इज वाई यहाँ पे मैंने इक्वालिटी नहीं ली है. 0 लेस देन x लेस देन π/2, ये चीज ली है. 0 और π/2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्सक्लूडिंग 0 एंड π/2. सेम में यहाँ पे π/2 और π के बीच का एंगल एक्सक्लूडिंग π/2 और π के सिवाय का. उसके बाद these are called quadrantal angle and these are not included in any quadrants. Actually this angle separates the quadrants. यहाँ पे π/2 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को सेपरेट करेगा, π सेकंड और थर्ड को सेपरेट करेगा, 3π/2 थर्ड और फोर्थ को सेपरेट करेगा, 2π या 0 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को सेपरेट करेगा. सो इट इज नॉट इंक्लूडेड. इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. दैट इज नोटेशन में ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, ना यहाँ पे हम एक के बाद एक साइन लिखना स्टार्ट करते हैं. दैट मींस यहाँ पे किस तरह से हमको करना है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक टेबल हम बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख रहे हैं. फर्स्ट quadrant, second quadrant,
4th quadrant. Okay. इसके अलावा इसको हम ये भी लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो रेडियन मेजर होगा वो 0 और π/2 के बीच में। तो यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन π/2 और डिग्री टर्म में 0 लेस देन x डिग्री लेस देन 90 डिग्री, या रेडियन इक्विवेलेंट डिग्री मेजर। ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 लेस देन x लेस देन π, दैट मींस 90 डिग्री, x डिग्री लेस देन इट्स यहाँ पे नहीं, पहले डिग्री के बीच में है, यहाँ पे 180 डिग्री, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, 180 डिग्री लेस देन x लेस देन 270 डिग्री, यहाँ पे 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π, और it is like this, ये चीज हम करते हैं। Okay, now ये जस्ट मैंने टेबल बना दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से। हमको पता है लेट P be the any point on the unit circle with center at origin। अगर P को मैंने सेंटर से कनेक्ट किया तो वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x रेडियन का एंगल वो बनाता है। तो अगर ये P को कनेक्ट करता हूं, वो x रेडियन का एंगल उसके सेंटर पे सब्सटेंड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स, तो P का x कोऑर्डिनेट वो होगा cos x और sin x। दैट मींस पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो cos और sin y कोऑर्डिनेट है वो sin, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमको पता है ये चीजें हैं। यहां पे मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं sin x और फर्स्ट विल बिगिन विथ cos x एंड sin x। ये दो चीजें, बाकी की सब चीजें आ जाएगी। नाउ ये x 0 लेस देन x लेस देन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। दैट मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट कहीं पे भी होगा, ये P पॉइंट कहीं पे भी होगा, उसका x एंड y कोऑर्डिनेट बहुत पॉजिटिव रहेगा। दैट मींस पॉइंट कहीं पे भी रहेगा, वो एंगल जो बनाएगा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उस एंगल के लिए उसकी cos की वैल्यू और sin की वैल्यू दोनों रहेगी पॉजिटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव। दैट मींस x 0 to π/2 रेडियन या 0 या 90 डिग्री के बीच होगा, तो उसकी cos की वैल्यू सबके लिए पॉजिटिव रहेगी, sin की वैल्यू सबके लिए पॉजिटिव रहेगी। बिकॉज ये जो पॉइंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट है, वो हम पढ़ चुके हैं, और इसके पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो जो एंगल सब्टेंड होता है उसके cos और sin के इक्विवेलेंट होता है। तो वो चीज हुई ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये P मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो π/2 और π के बीच में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है x नेगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव। x नेगेटिव रहेगा, दैट मींस जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, और जो पॉइंट होगा वो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। x कोऑर्डिनेट यानी कि cos की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट यानी कि sin की वैल्यू। दैट मींस अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू नेगेटिव होगी और sin की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां पे इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, बिकॉज जो हम पढ़ चुके हैं अब उसी का हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसका ही हम यूज कर रहे हैं, और कुछ कंक्लूजन के ओर हम और जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों x नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और जो पॉइंट होगा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो जो एंगल इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा, दैट मींस सेंटर से कनेक्ट करूंगा, तो जो एंगल सब्सटेंड करेगा उस एंगल का cos वैल्यू वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो वो जो एंगल है उसका cos दैट मींस इस कोऑर्डिनेट में होगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू मुझे मिलेगा x कोऑर्डिनेट, तो cos नेगेटिव रहेगा। और sin दैट मींस अगर एंगल 90 के अबव है और 180 के नीचे है तो उस एंगल के लिए cos की वैल्यू नेगेटिव और sin की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी।
उसी तरह से हम मूव करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ये पी मूव करता हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है, वी नो दैट एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में यूनिट सर्कल पे जो पॉइंट होगा वो जो एंगल सबटेंड करेगा एट सेंटर पे, उसके लिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव और साइन की वैल्यू हुई नेगेटिव, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बहुत पॉजिटिव। तो जो पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा उसके लिए कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। ये मूव करता हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगा तब उसका एंगल 3π/2 और पाई के बीच में होगा, और तब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है, और जो पॉइंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो कोस को रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट वो साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, दैट मींस मोर देन 270 डिग्री के लिए होगा, तब कोस पॉजिटिव रहेगा और साइन नेगेटिव। कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और साइन की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ हम साइन, दैट मींस वैल्यू क्या है वो अभी भी हम पे नहीं जा रहे, वो वैल्यू हम नेक्स्ट देखेंगे। इन सारी चीज का यूज करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो हम सारी चीजें, इन सब एंगल के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। मोर देन π/2, लेस देन पाई, मोर देन पाई, मोर देन 3π/2, इन सारी एंगल के लिए हम साइन कोस टेन सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बट राइट नाउ फर्स्ट हम ये साइंस डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेंट में इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन, और साइन तो जो कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से ही, जो क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कॉस रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से हमने ये चारों को लिखा है और उस तरह से होगा। ये दैट इज ये क्लियर होना चाहिए। तो जब एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के, जो एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगी, उस एंगल के लिए कोस की वैल्यू पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में होगी, दैट इज 90 और 180 की डिग्री में होगी, तो उसके लिए कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पाई और 3π/2, दैट मींस जब एक्स की वैल्यू 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में होगी, तो इस एंगल के लिए कोस की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू 270 और 360 के डिग्री के बीच में, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, उस के लिए कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइन का भी हमने लिखा है, बाकी का हम इजीली लिख सकते हैं tan x। नाउ tan x क्या है, तो tan x इज नथिंग बट sin x अपन cos x, दैट इज साइन और कोस का रेशियो है। तो यहाँ पे यही चीज करना है, x 0 to π/2 के बीच में cos पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, इन दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव ही रहेगा। सेम में सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे इस साइन अपन कॉस, साइन प्लस है और कॉस नेगेटिव, तो प्लस डिवाइड बाय नेगेटिव, प्लस डिवाइड बाय माइनस, दैट इज माइनस, बिकॉज tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अपन कॉस, नेगेटिव अपन पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, इस तरह से होगा। ये दो चीजें पता होनी चाहिए, बाकी का उसके ऊपर से आ जाएगा। बाकी जो है इसके रेशियो ही है साइन और कोस के। सिमिलरली cot x इज व्हाट, cot x इज नथिंग बट इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ tan x। ओके, तो जो tan के लिए जो साइन है उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी साइन चेंज नहीं होती। तो cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ tan, तो यस ये प्लस है तो cot भी प्लस, माइनस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी प्लस cot, और ये माइनस है तो माइनस। अब sec x क्या है, तो 1/cos x, तो sec है वो cos का रेसिप्रोकल है। तो जस्ट किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल नंबर लेते हैं तो उसका साइन या वैल्यू चेंज होती है, लेकिन साइन चेंज नहीं होता। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव ऐसा नहीं होता, साइन वही रहती है। और sec cos का पॉजिटिव है तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में नेगेटिव तो sec भी नेगेटिव रहेगा sec में। थर्ड में नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा sec। फोर्थ में पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव रहेगा। और cosec x ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो जो साइन की जो नंबर्स है उसके रेसिप्रोकल नंबर्स होंगे। ओके, तो सेम लॉजिक के हिसाब से जो साइन की साइन रहेगी वही sec cosec की साइन रहेगी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में पॉजिटिव है तो ये भी cosec भी पॉजिटिव रहेगा।
थर्ड में नेगेटिव है तो ये भी कोसेक भी नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव, इस तरह से होगा। ओके, नाउ मेजर क्या है, तो कॉस और साइन इन दोनों को हमको ध्यान में रखना है, बाकी सब रेशियो है। इसको इजीली याद रखने का भी तरीका है। कैसे, तो हम क्वाड्रेंट वाइज ऑब्जर्वेशन करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें सब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर x जो एंगल पॉइंट यूनिट सर्कल पे होता है वो सेंटर के आगे अगर एक्यूट एंगल बनाएगा, दैट मीन्स 0-90 के बीच में बनाएगा, उससे लेस देन 0-90 के बीच का कोई भी एंगल बनाएगा, उस सब के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव है। और 10th में हमने यही चीज पढ़ी थी, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा था, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने पॉजिटिव भी ली की थी। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, सब पॉजिटिव होगा बिकॉज यहाँ पे एंगल है वो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री के नीचे है, उन सबके लिए पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो ये दो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। ये दो पॉजिटिव है, कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। साइन एंड कोसेक दे आर नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, वी विल मूव टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो पॉजिटिव साइन कौन सी है, तो ये दो, या किसकी पॉजिटिव साइन है, तो कि tan और cot। tan और cot भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फोर्थ में हम देखेंगे तो cos और sec ये दो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ओके, तो इसके ऊपर से हम एक रूल बनाएंगे, क्या, ऑल एस टी सी। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट एस, थर्ड क्वाड्रेंट टी, फोर्थ क्वाड्रेंट सी। फर्स्ट में ऑल यानी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस यानी साइन का फर्स्ट नंबर। ओके, साइन एस से शुरुआत होती है, वो साइन हम समझेंगे। साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव का हम याद रखेंगे। थर्ड में टी, दैट मीन्स tan और उसका रेसिप्रोकल, tan और उसका रेसिप्रोकल cot। सो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव। सी cos, ओके, cos और उसका रेसिप्रोकल sec, ये दो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हियर इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे ये पूरा चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस हियर, ऑल एस टी सी। ऑल यानी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस यानी साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी यानी tan और उसका रेसिप्रोकल cot, और सी यानी cos और उसका रेसिप्रोकल sec। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू। इस तरह से हमको याद रखना है, ये रूल बनेगा ऑल एस टी सी। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड क्लॉकवाइज वी विल हैव टू मूव। So it is about the science of a trigonometric functions. Okay, so we are just moving। इस तरह से हमको जनरल टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, तो हम इस तरह से एक एक करके ये टॉपिक्स हम कवर करते हुए जा रहे हैं, कि पूरे आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। दैट इज व्हाट, इसलिए मैंने आपको जस्ट इस लेक्चर में बिगिनिंग में कहा था, आई एम जस्ट इंटेंशनली गोइंग लिटिल बिट स्लो, लेकिन ये सारे कंसेप्ट मेरे को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाने हैं, क्योंकि ये चीजें क्लियर होगी तो आपको बहुत कोई चीज आप समझ के करते हो, ऐसा रट्टा मार के करते हो, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती, क्यों क्या रहा है, कैसे हो रहा है, उनको किस तरह से याद रखना है, ये सारी चीजें उनको पता रहेगी, तो इट विल ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतना आप जस्ट ध्यान से देख लीजिए। ये भी याद रखना है, इट्स ऑल एसटीसी, ये रूल याद रखना है। नाउ टुमारो में आपको सब वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू का हम चार्ट लिख के हम कुछ एग्जांपल्स करने का ट्राई करेंगे। जितना अभी तक हम पढ़े उसका यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स करने का ट्राई करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।